الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرستیں آج جاری کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات کی جانچ پڑتال کا بھی آج آخری روز ہے۔ اپلیٹ ٹربیونلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا آخری روز۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پرویز الہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن بینچ میں شامل۔ ٹربیونلز کے فیصلوں کے خلاف مزید کئی امیدواروں کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ لاہور بار کی سلامت احوال کے ووٹ جاری ہیں۔ صدر کی نشست پر منیر حسین بھٹی، ادیب اسلم بھنڈر اور عمران مسعود مد مقابل ہیں۔ 9 مختلف نشستوں پر 36 امیدواروں میں مقابلہ ہے۔ 14,228 وکلاء حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ سیاسی منظر نامے پر ایک اور اپ سیٹ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار انتخابی عمل سے دستبردار ہو گئے۔ عثمان بزدار نے تونسا کی نشست سے اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ عثمان بزدار کے بھائی سردار جعفر بزدار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ذرائع کے مطابق موجودہ حالات میں عثمان بزدار سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ پی پی 148 مسائل کا گھر بن گیا۔ گلیاں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے سے جرائم بڑھ گئے۔ اہل علاقہ پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہو گئے۔ گندگی کے ڈھیر سے اٹھتے تعفن سے سانس لینا محال ہو گیا۔ جو مسائل حل کرائے گا ووٹ اسی کو دیں گے، علاقہ مکینوں کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا نئے راوی پل پروجیکٹ کا تفصیلی دورہ۔ پل کی تعمیر کے لیے جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے شدید سردی کے دوران کام میں مصروف مزدوروں سے مصافحہ بھی کیا۔ پنجاب میں بروقت عوامی منصوبوں کی تکمیل کمیشن۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ اظفر علی ناصر کنٹینر میں شفٹ ہو گئے۔ بند روڈ کنٹرولڈ ایکس کوریڈور پروجیکٹ کی سائٹ پر کنٹینرز میں بیڈ لگوا لیا۔ اظفر علی ناصر نے کنٹینر میں عارضی رہائش اختیار کر لی۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا شاہدرہ چوک کا دورہ۔ تعمیراتی کام کی فنشنگ کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کنٹریکٹر نے کام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ شاہدرہ چوک کے اطراف فنشنگ ورک مکمل، لین مارکنگ بھی کر لی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ناکامی سے دوچار۔ اسٹیٹ بینک نے مارک اپ سبسڈی واپس لے لی۔ پنجاب بینک کا بھی فنڈز دینے سے انکار۔ پنجاب حکومت نے لاہور، چینیوٹ اور سرگودا میں گھروں کی تکمیل پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو دے دی۔ شہر میں ہر طرف مصنوعی مہنگائی کی دہائی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ٹھنڈ میں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ ناجائز منافع خوروں کی چاندی، صارفین کو لوٹنے لگے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ برائلر گوشت کی قیمت 7 روپے بڑھ گئی۔ مرغی کا گوشت 602 روپے تک جا پہنچا۔ فارمی انڈوں کی قیمت 2 روپے مزید بڑھ گئی۔ 12 انڈے 398 روپے میں ملیں گے۔ شہر میں بادلوں اور خشک سردی کا راز برقرار۔ درجہ حرارت کم سے کم 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں سردی مزید بڑھ جائے گی۔ بادلوں کے باوجود شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر میں چائی فضائی آلودگی میں کمی۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں 7ویں نمبر پر آ گیا۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح 170 ریکارڈ۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا رہنے کی ہدایت کر دی۔ سردی میں غریب اور متوسط طبقے کا سہارا لنڈا بازار بھی مہنگا ہو گیا۔ دکاندار عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ لنڈا بازار میں ایک دکاندار آج بھی غریب کا احساس کرنے والا ہے۔ دکاندار کا دعویٰ ہے کہ وہ شہر میں سب سے سستے ملبوسات فروخت کرتے ہیں۔
आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का ज़ेर तामीर थाना शादमान का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने थाने के तामीराती काम का जायजा लिया। एमडी सेफ सिटीज एहसन यूनस, डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी, सीटीओ अमारा अतहर, सीईओ सेफ सिटीज मुस्तनसर फिरोज भी हमरा थे। एसपी इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा की मुस्लिम टाउन सर्कल की क्राइम मीटिंग, अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी वाले पुलिस अफसरान को शोकाज जारी। कहा 15 कॉल पर रिस्पांस टाइम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अज़्म, हौसले और हिम्मत ने पुलिस जवान की मासूर अफराद के लिए मिसाल बना दिया। दोनों टांगों और एक हाथ से महरूम हुसनैन ने गाड़ी चलाकर सबको हैरान कर दिया। मसनूई एज़ा लगवा कर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। कहा ड्राइविंग सीख कर मजदूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। और धुंध में लिपटी ठंडी सुबह में गर्मा गर्म हलवा पूरी का क्या कहना। शौकीन मौसम की मुनासबत से नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गए। देसी घी में तैयार हलवा पूरी के साथ मटन कीमे की कचौरी खाने में मसरूफ हुए और देसी घी वाला हलवा अलग ही मजा देता है। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूं शहबाज चौधरी और मैं हूँ सानिया इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। तो जनाब, इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर करने का ये केस है। दरखास्तों की तादाद 250 से जायद हो गई। जस्टिस अली बाकी नसफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत का आज चौथा रोज है। अदालत ने परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनस इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ फैसलों के खिलाफ दरखास्त का ये मामला है। दरखास्तें दायर करने का केस, दरखास्तों की तादाद 250 से जायद हो गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत का आज चौथा रोज है। अदालत ने परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनस इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। जी हाँ, कैसरा इलाही और मोनस इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर करने का ये केस है। दरखास्तों की तादाद 250 से जायद हो गई है। जस्टिस अली बाकी नसफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत का आज चौथा रोज है। अदालत ने परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनस इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। जी हाँ, इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर करने का केस, दरखास्तों की तादाद 250 से तजावुज कर गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत का आज चौथा रोज है। बहुत सारे केसेस का फैसला महफूज भी किया गया जो आज सुनाया जाएगा। अदालत ने परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनस इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। शाम मुहम्मद कुरैशी की दरखास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया है। मियां हमाद अजहर की दरखास्त पर भी फैसला महफूज कर दिया गया है। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्त दायर की है। शाह मुहम्मद कुरैशी ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ भी दरखास्त दी थी। फवाद चौधरी ने भी दरखास्त दे रखी है। मियां हमाद अजहर ने भी दरखास्त दे रखी है। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर करने का ये केस है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमर हयात से। जी उमर हयात, अपडेट कीजिएगा। उमर हयात, क्या लाहौर हाई कोर्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ उनके फैसलों के खिलाफ जो अपीलों आईनी दरख्वास्तें दायर करने का सिलसिला जो जारी है और आज भी हमें ज़राए ने बताया है कि आज भी मज़ीद दरख्वास्तें जो है दायर की जा रही हैं। इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ 3 रुकनी बेंच जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में जिन्होंने इन दरख्वास्तों पर समाअत की थी, PTI के रहनुमा जो हैं शाह महमूद कुरैशी, मियां हमाद अजहर, सनम जावेद, फवाद चौधरी समेत दीगर जो हैं उनकी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया है जो आज सुनाए जाने की तवक्को है। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी के बेंच रूबरू जो है मज़ीद
मज़ीद जो दरख्वास्तें वो दायर की गई हैं और मज़ीद जो नई 60 से ज़ायद गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्तें दायर की गई थी, ताहम आज अदालत के रूबरू वही दरख्वास्तें समाअत के लिए पेश की जा रही हैं जो जिन पर कल यानी गुज़श्ता रोज़ समाअत नहीं हो सकी थी। गुज़श्ता रोज़ 3 रुकनी बेंच के रूबरू 128 जो आइनी दरख्वास्तें थी वो बतौर अर्जेंट केसेस जो है वो समाअत के लिए पेश की गई थी और कल ही 60 से ज़ायद नई दरख्वास्तें जो है वो दायर की गई। इस तरह जो टोटल दरख्वास्तों एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की तादाद जो है 250 से ज़ायद हो गई है। ज़राए ने यह भी बताया है कि आज भी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें जो आइनी दरख्वास्तें जो है वो दायर करने का सिलसिला जारी है और इन पर कल यानी बरोज़ इतवार भी फाजिल 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा, ये हमें ज़राए ने बताया है। इसके हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ कि आज सुबह जब 3 रुकनी बेंच ने केसेस पर समाअत शुरू की तो चौधरी परवेज़ इलाही, मोहनिस इलाही, कैसरा इलाही की 6 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ जो दायर उमर, ये बताइएगा आज शुरू निशानात भी अलॉट किए जाने हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आज निशानात भी अलॉट किए जाने हैं। ये जितने भी फैसले महफूज हैं जिनमें शामिल कुरैशी का फैसला है, सनम जावेद हैं, फवाद चौधरी हैं, मियां हमाद अजहर हैं, बाकायदा तौर पर PTI की जानिब से टिकट्स भी जारी किए गए हैं। तो आज निशानात भी अलॉट किए जाने हैं, कब तक ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से आखिरी रोज़ है? जी, हमें ये भी इस हवाले से जो अदालती तारीख है या इस जो अहम नोयत के इस तरह के इवेंट्स होते हैं, जिस तरह के आज इलेक्शन कमीशन के कागजात नामजदगी मंजूर और उसके बाद मुस्तरद होने के खिलाफ आइनी दरख्वास्तें हैं वो दायर की गई हैं। आज ही इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने हैं। इस सिनेरियो में और इस पस मंज़र में तवक्को की जा रही है कि अदालत जो है वो उम्मीदवारों को मशरूत तौर पर जो है वो फैसले करेगी और उनको इजाज़त दे सकती है इलेक्शन में कंटेस्ट करने की, लेकिन हतमी फ़ैसला जो होगा उसके ऊपर उनको पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। ताहम ये भी है तवक्को की जाए अगर अदालत इसके ऊपर मज़ीद समाअत जारी ना रखे और उसके ऊपर हतमी फ़ैसला कर दे तो उनको जो उम्मीदवार जिन्होंने ये आइनी दरख्वास्तें दायर की हैं उनके ऊपर आज ही हतमी फ़ैसला कर दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से कुछ हतमी कहना मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी तक 3 रुकनी बेंच जो है जितनी भी उन्होंने आइनी निकात के ऊपर और कानूनी निकात के ऊपर दरख्वास्तों पर दलाइल सुने हैं और उनके ऊपर फैसले महफूज किए हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अभी साबिक वज़ीर आज़म और कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए पेश की जानी है। बानी PTI चेयरमैन जो हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर भी समाअत की जाएगी। इसके अलावा दीगर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें जो वो भी समाअत के लिए आज पेश की जाएंगी। उमर, ये बताइएगा और कौन कौन से बड़े नाम हैं, क्योंकि आपने बानी PTI का नाम लिया, कायद नून लीग का नाम लिया, 250 दरख्वास्तों में और कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनकी दरख्वास्तें आज सुनी जाएंगी? जी, अभी तक तो इनके बारे जो गुज़श्ता रोज़ रह गए थे केसेस उनके ऊपर ही समाअतें हो रही हैं और गुज़श्ता रोज़ फाजिल 3 रुकनी बेंच जो है उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही, मोहनिस इलाही, कैसरा इलाही की 6 हलके जो हैं जिनमें 3 कौमी असम्बली के हलके हैं और 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ जो आइनी दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर समाअत आज हो रही है। क्योंकि ये कल समाअत अर्जेंट के तौर पर समाअत के लिए पेश की गई थी, लेकिन आज अभी तक जो नई दरख्वास्तें दायर हुई हैं उनके ऊपर समाअत मुमकिन नहीं है। बानी चेयरमैन PTI और कायद नून लीग जो है नवाज शरीफ उनकी दरख्वास्तों पर भी आज समाअत शायद ही हो और ये कल तक चली जाएंगी, ये हमें ज़राए का कहना है। जी ठीक है उमर हयात, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।